بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میں یہ کہہ رہا تھا کہ شاکر ہم لوگ کیسے نمٹیں گے یہ جو اندھیرا جس کی میں بات کر رہا ہوں اور اندھیرا جو پھیلنے جا رہا ہے اور بہت بری طرح پھیلے گا. ٹھیک ہے، روشنی تو آئے گی، بالکل آئے گی، لیکن ہم اس کے مقابلہ کیسے کریں؟ ہم پہلی بات ہم اس کے ادراک کیسے دیں کہ اس کے ادراک کیسی ہو کہ اندھیرا ہے اور اندھیرا پھیل رہا ہے. اس کا ادراک کیوں نہیں ہے لوگوں کو؟ لوگ کیوں نہیں دیکھ پا رہے ہیں؟ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اندھیرا کس چیز کو کہتے ہیں؟ وہ کیا چیز، کیا گیپ ہے، کیا خامی ہے کہ لوگ کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں اندھیرا کس چیز کو کہتے ہیں؟ اور جب ان کو پتا ہو کہ اندھیرا کس چیز کو کہتے ہیں تو پھر اندھیرا جو پھیل رہا ہے اس کا ادراک کیوں نہیں ہے؟ علامہ اقبال جیسے کہتے ہیں نا کہ یا رب احساس عنایت کر آثار مصیبت کا. ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ مصیبت کے جو آثار دیکھتے ہیں نا اس سے ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ کیا مصیبت آنے والا ہے. اس کا کیا کیا جائے، کیسے چینج کیا جائے، کیسے مسلم کو، مسلمانوں کو جو بھی ہیں سمپل لوگ ہیں، کیسے ان کو بتایا جائے؟ ہاں گو اہیڈ شاکر. اچھا عابد بھائی، میں نے اس میں اپنی جو دانش مجھے جو آبزرویشن ہے نا میں آپ کے سامنے وہ رکھوں گا. یہ جو آپ کا سوال ہے نا، یہ سوال کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہیں. مثال کے طور پہ آج کل کا انسان جو ہے نا وہ ڈرنک ہے، شعوری طور کے اوپر ڈرنک ہے. مطلب اس کی اپنی حصیں کام نہیں کرتی ہیں، وہ بس چلی جا رہا ہے ایک بھیڑ کے اندر نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کس چیز سے نپٹیں گے. حلال حرام کی تمیز اگر اس کو سکھائیں گے تو بولے گا کہ میں زندہ کیسے رہوں گا. آج کل کے جو کھانے ہیں وہ کیمیکلز کے ساتھ ہیں. آپ کتنی ریسرچ کروائیں گے، کتنی ریسرچ کریں گے اس بات کو جاننے کے لیے کہ اس میں کتنے ہارمونز ہیں، یا اس میں کون سے بیکٹیریا ڈالے گئے ہیں، یا کون سے اس کے اندر ایسی انزائمز ڈالے گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہی نہیں کہ انسان کی وہ فیکلٹیز جو ہیں جس سے وہ اندھیرے کو دور کرے وہ آن ہو. پھر آپ کے پاس آرگینک فوڈ نہیں ہے. اس کے بعد پھر آپ میڈیسنز جو ہیں آپ کی کیمیکلز ہیں. ہر بندہ جو ہے وہ سکون کی گولی چاہتا ہے. ہر بندہ مینٹل پیشنٹ بن چکا ہوا ہے. کسی نہ کسی کو ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، اسٹریس ہے. وہ اس کی چاہتا ہے کہ مجھے سکون ملے زندگی کے اندر. مطلب اتنی زیادہ قسم کی چیزیں ہیں کہ جس کو آپ چھوڑ کر اگر نیچرلی زندہ رہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر جو سوچ پیدا ہو وہ ایک نیچرل سوچ ہو، وہ ایسی سوچ ہو کہ جو اسپرچولیٹی کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہو، جو انوائرمنٹ کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہو، وہ اویلیبل ہی نہیں ہے آپ کے پاس. پھر آپ کے پاس سوشل میڈیا، مطلب یو نیم اینی تھنگ کہ جس سے انسان کو، مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ they have created such environment that where every person is drunk. اور اس کو یہ ہینگ اوور جب اترتا ہے تو they don't want to face the reality because the reality is too painful. تو how you gonna get them out of it knowing کہ یہ اندھیرے سے خود لوگ نکلنا نہیں چاہ رہے، کیونکہ وہ نکلنے کے لیے جو روشنی کا ہے اس میں بہت محنت کرنی پڑے گی، اور اتنی محنت کرنے کے لیے وہ نہیں سمجھتے کہ ان کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہے یا ان کے اندر ایسے ان کے پاس ایسے ریسورسز اویلیبل ہیں، ورنہ وہ دنیا سے کٹ جائیں گے. یو سی the traps are everywhere. اور جو لوگ ان ٹریپس میں نہیں ہیں نا ان کو دنیا کسی بھی کھاتے پہ لے کر ہی نہیں آتی. نہ ان کی بات سنتی ہے، نہ ان کی بات کی کوئی ویلیو ہے، نہ ان کے کام کی کوئی ویلیو ہے. they only value the person who is drunk with them and actually وہ جو ہاں میں ہاں کہتا ہے اور نہ میں نہ کہتا ہے. it is a very disastrous situation, you know. مثال کے طور پہ ایک رائٹر نے لکھا ہوا تھا کہ دنیا کے اندر جو ہے نا 85% آف دا پیپل آر بیسیکلی فالوورس. 5% is the elite who control the world. Remaining 10% are the one who oppose it. اور وہ جو 5% ہے وہ اس 10% کو مروا دیتی ہے تاکہ وہ ان کو اپوز نہ کریں اور باقی کے سارے فالوورز ویسے کے ویسے ہی رہیں.
हमारे यहाँ पिछले 700 सालों में इस चीज़ पे काम नहीं हुआ। हाँ, ठीक है, पोएट्री के अंदर ये कहीं न कहीं किसी न किसी ने जगाने की कोशिश की है। लेकिन इसके साथ-साथ जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट को प्योर रखना कि उसमें आप कम से कम एक बहैसियत एक इंसान के ऑपरेट कर सकें, दैट इज़ बिकमिंग हार्डर एंड हार्डर। एवरीवन हैज़ बिकम एनिमल नाउ। हर बंदा इंस्टिंक्टिव हो चुका हुआ है, इम्पल्सिव हो चुका हुआ है। और जो वेस्ट ने मेहनत की है, वो मेहनत ही अब इस चीज़ के ऊपर कर रहा है, रिसर्च इस चीज़ के ऊपर कर रहा है कि ह्यूमन माइंड को कंट्रोल किया जाए, ह्यूमन इमोशंस को कंट्रोल किया जाए, इनको इमोशंस के साथ अटैच कर दिया जाए कि ये अपने आप को डिटैच ना कर सकें। इनकी डोपामाइन जो है ना, जो इनको प्लेजर देता है, बस ये उसी के ऊपर ढूँढते रहें उसको। और उन्होंने हैप्पीनेस जो एक मिथ थी, उस हैप्पीनेस को इतना एग्ज़ैगरेट कर दिया हुआ है कि हर बंदा जो है ना, ये सवाल करता है कि मैं क्या हैप्पी हूँ या नहीं हूँ। मतलब रिडिकुलस किस्म की चीज़ें, फिर वो हैप्पी होने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल करता है। मतलब द होल सोसाइटी हैज़ बिकम आर्टिफिशियल एंड फेक सोसाइटी। और इसके अंदर अगर कोई बंदा लाइट लेके खड़ा और कहे कि तुम लोग गलत रास्ते के ऊपर चल रहे हो, तो इट फील्स लाइक दैट यू आर डूइंग द वर्क ऑफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, जिन्होंने 950 साल तबलीग की और लोग जो हैं अम, जो है वो नहीं आए। This is exactly I feel like that we are living in the era of Hazrat Nuh alayhi salam, where we're trying to lighten up the beacon, and then people are getting away from the beacon. They don't want the light. They said that they are happy with what they have now. In that situation, अपने आप को महफूज रखना और अपने आप को इन तमाम चीज़ों से दूर रखना, ये बहुत एक मुश्किल काम हो चुका हुआ है। And this is my scattered thoughts that I've shared with you by observing the society which society is going towards. What do you say about that? नहीं, तुमने एक बात जो सारी गुफ्तगू में एक बात जो की ना, दैट एक्चुअली गिव्स मी द आंसर टू द प्रॉब्लम। वो ये है कि हम नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में रह रहे हैं। ये बात तुमने बहुत जी की, ये मुझे ये क्लिक किया, बाकी तो सही है, लेकिन ये चीज़ मुझे क्लिक की। फ़रिया अस्सलाम वालेकुम। ये मुझे क्लिक किया कि आप लोगों को बता नहीं सकते, लोग सोचना नहीं चाहते हैं, लोग सुनना नहीं चाहते हैं। लेकिन मेरे ज़हन में जो उसका जो एक रीज़न नज़र आता है मुझको, वजह नज़र आती है बुनियादी तौर पर, वो ये है कि ह्यूमन बीइंग को ना ये अल्लामा इक़बाल भी कहते हैं ना कि ये रूह बदन का मार्का है। असल चीज़ ये है कि मादियत को ही एक अपना वजूद समझ लेना, अपने एग्जिस्टेंस को मादी एग्जिस्टेंस समझ लेना ना, तो वो उसके पे डिमांड, उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी वो चीज़ें अलग होती हैं, एनवायरनमेंट अलग होती है। लेकिन जब स्पिरिचुअल कनेक्शन का ख़त्म हो जाना, हुआ ये है कि इंसान के अंदर, मैं ये अपने हिसाब से समझता हूँ कि सारी चीज़ों की जड़ ये है कि मैं ह्यूमन बीइंग आर लूज़िंग देयर स्पिरिचुअल एक्जिस्टेंस। ये हो चुका है। खाना-पीना, ज़िंदा रहना, ये वो तमाम चीज़ें वन वे और द अनदर इज़ नॉट इनफ। वो हो जाएगा, वो मिल जाएगा, लोग खा पी लेंगे। हो सकता है कि बहुत शानदार आने वाली ज़िंदगी बहुत मुमकिन है, थोड़े दिनों के लिए सही, थोड़े दिनों सही, बहुत मुमकिन है कि बहुत खूबसूरत मादी ज़िंदगी भी इंसान को मिल जाए। क्योंकि ये जो दज्जाल के ज़माने में, उसके ज़माने में वो पैसा जो है वो तो लुटाया जाएगा, ज़मीन अपने अंदर से वो दौलत उगलेगी ना, तमाम चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। असल चीज़ जो इंसान ने नहीं पहचाना ना, वो खो के रह गया, क्योंकि वो अल्लाह ताला ने खुद कहा था ना, अल्लाह ताला ने सूरह इसमें हशर में कहा है ना कि अगर तुम मुझको भूल जाओगे तो मैं तुमको तुमसे भुला दूँगा। गौर कीजिएगा आप कि तुम मुझको भूल जाओगे तो मैं तुमको तुमसे भुला दूँगा। आज की दुनिया जब उसने अल्लाह ताला को छोड़ दिया, तो अल्लाह ताला ने इंसान को उसको उसकी वो है क्या चीज़ वो भुला दिया। मैं ये समझता हूँ कि हम भूल चुके हैं कि हमारा क्या स्पिरिचुअल, और स्पिरिचुअल एक्जिस्टेंस ही दरअसल बहुत खूबसूरत तरीन एक्जिस्टेंस था। बहुत खूबसूरत तरीन, सर्वर अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूबसूरत एक्जिस्टेंस था स्पिरिचुअल एक्जिस्टेंस। और एक स्पिरिचुअल एक्जिस्टेंस को ही हम जो है ना भूल चुके हैं, वो निकल गया। तो मैं जिस तरफ की बातें कर रहा हूँ, जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, वही चाह रहा हूँ कि जो आने वाले ज़माने का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वही है कि आने वाले ज़माना में जो अंधेरापन आ रहा है, उस अंधेरेपन का एक तो एहसास नहीं, और अगर एहसास हो भी, तो उस अंधेरेपन से निकलने का क्या तरीका हो सकता है, उसका कोई सोच नहीं है, उसका कोई वो नहीं है।
अंधेरेपन के सिलसिले में, ठीक है ना? तो ये है वो प्रॉब्लम कि हम इसको कैसे वापस लेके आएँ, इसको हम कैसे वो करें? तो शाकिर यही बात हमारे अभी डिस्कशन जो हो रही है ना, वो यही हो रही है कि इस अव्वलन 2 पॉइंट में, अव्वलन अंधेरे का अंदाज़ा क्यों नहीं हो रहा लोगों को? और नंबर 2, अगर अंधेरे का अंदाज़ा हो जाए तो उसका वे आउट क्या है? उससे निकलें क्यों? तो मेरा अपना ज़ाती ख़्याल ये है कि वो जो बात जो कर रहे हो कि हम नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में रह रहे हैं और वही सिचुएशन है। लेकिन क्या शुड वी गिव अप? क्या हम छोड़ दें? क्या हम भी जो थोड़े से लोग जो आवाज़ उठाते हैं और जो समझ रहे हैं और जिनका दिल तड़प रहा है, जो देख रहे हैं, जो मैंने कल जैसे लिखा था कि अंधेरा जो है वो अंधेरे का इनकार किया रोशनी की दलील है। यानी कि लोग जो है ना वो अंधेरे को नहीं देख रहे हैं तो समझ रहे हैं कि हम बहुत एनलाइटेंड है। क्या वो वाक़ई एनलाइटेंड है? सिर्फ़ इसलिए कि वो अंधेरे को देख नहीं सक रहे हैं? इसलिए गलतफ़हमी का पता है उनको, इसलिए अब एक किस्म के डिसेप्शन में हैं कि अंधेरे कि हम जो है वो अंधेरे में हैं। कि हमें क्या करना चाहिए? क्या हम जो है वो हार मान लें? क्या हम बैठ जाएँ? क्या ये अंधेरा जो फैलने लगा है, इस अंधेरे को फैलते हुए हम रोक ना सकें? या कम से कम ये कि उसके खिलाफ अगर उसको रोकने की हिम्मत नहीं है, तो कम से कम अपने और अपनी फैमिली को बचा सकें? ये अंधेरा जो मैं कह रहा हूँ ना, ये अंधेरा अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी बहुत अंधेरा आएगा। ये अंधेरा जो चीज़ हमसे छीनेगा, क्या छीनेगा मुझे आप ये बताएँ? हमें जिस चीज़ की फ़िक्र है छिन जाने की, वो ये फ़िक्र होती है कि घर, गाड़ी छिन जाएगी। ये घर गाड़ी छीनने की नहीं हो मुमकिन है कि ना भी छीने घर गाड़ी। मुमकिन है कि सबको एक के बजाय 10 गाड़ी मिल जाए। एक घर के बजाय 10 गाड़ी मिल जाए, मैं 10 घर मिल जाए। हो सकता है कि हालात बहुत बेहतर हो जाएँ, थोड़े दिनों के लिए सही। दुनिया की ऐशो-इशरत आ जाए। क्या ये मेरी बक़ा है? असल चीज़ जो खून के आँसू रोने की बात है ना, लोगों ने मज़हबियत को ही रूहानियत समझ लिया था। एक तो ये बात है। लोग ये समझते रहे कि हम जो है जन्नत हासिल करने के लिए या दोज़ख के खौफ से हम सिर्फ़ अपना फ़र्ज़ पूरा करते रहें, तो ये हमें जो है ना जन्नत मिल जाएगा। ट्रेजेडी ये है वो ट्रेजेडी कि हम ये समझते रहे कि हमको जो है वो क्या कहते हैं जन्नत मिल जाएगा। लेकिन हमें से किसी ने भी ना अल्लाह के साथ ताल्लुक का जो है ना कि मैन गॉड रिलेशनशिप की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। आज इसकी वजह से इंसान इवन मज़हबी होने के बावजूद भी उसके अंदर मैन गॉड रिलेशनशिप नहीं है। मज़हबी होने के बावजूद भी उसके अंदर अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं है। कितनी बड़ी ट्रेजेडी है ये। ज़रा सोचो तो सही। ज़रा सोचो कि कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आज इंसान जो है मज़हबी होने के बावजूद भी मैन गॉड रिलेशनशिप उसके अंदर नहीं है। वो अपने रब को नहीं पहचानता है। उसको उसके रब से ताल्लुक नहीं है। ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमें हमें सबसे बड़ी जो बात है और वो जो मज़हबियत है वो एक किस्म का ट्रेडिशन है। वो एक किस्म का रसूमात के तौर पर हमारे अंदर आ गया है। लेकिन इंसान आज अल्लाह से कट गया है। उसके अंदर वो शौक होता था। अल्लाह से एक प्यार होता था। अल्लाह से एक रिलेशनशिप होता था। अल्लाह को अपने इर्द-गिर्द महसूस करता था। अपने साथ महसूस करता था। अपने आप को कभी अकेला नहीं महसूस करता था वो। अल्लाह को अपना सहारा महसूस करता था। उसको अल्लाह से प्यार था। वो कोई बात करते हुए सोचता था कि मैं इतने इतना गहरी गुफ्तगू नहीं कर सकता मैं। इतनी छोटी बात गुनाह तो छोड़ दें आप। छोटी बात करते हुए शर्मिंदा होता था कि मेरा अल्लाह सुन रहा है, मैं इतनी छोटी-छोटी बातें कैसे करूँ? मैं कमज़ोरी की बातें कैसे करूँ? मैं कमीनी गुफ्तगू कैसे करूँ? कहाँ गया ये इंसान? ये इंसान की खूबसूरती थी। अमारत खूबसूरती नहीं थी। एक खूबसूरती थी कि वो अल्लाह के मखलूक के साथ बाँट के खाया करता था। ये उसकी रूहानियत थी। वो बाँटता था, खाता था, थोड़े से होते थे, दूसरों को खिलाता था। उसको जब उसके साथ कोई शेयर करके खाता था, तो खुश होता था। आज कोई शेयर करता है, तो लोगों को शेयर करने का सवाल नहीं पैदा होता, तो लोग छीन लेते हैं। और अगर शेयर कोई कर ले, तो लोगों को कुढ़ते रहते हैं अंदर से कि ये मेरा हिस्सा ले गया। ये सब रूहानियत की कमज़ोरी है। लेकिन ये तो इंसानियत थी ना। इंसानियत तो यही हुआ करती थी। ये इंसानियत में हमेशा अख़ुवत हुआ करता है। इंसानियत में हमेशा इज़हार हुआ करता है। कितना खूबसूरत इंसानी ज़िंदगी हुआ करेगा। लड़ाई-झगड़ा होता है, लड़ाई-झगड़े से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इंसानियत थी माज़ी में। इंसान में लड़ाई-झगड़ा एक दफ़ा वक़्त आया, गुस्सा-गुस्सी हो गया, मार दिया, काट दिया, इससे इंसानियत नहीं ख़त्म हो जाती। इंसानी एक मुकम्मल बिहेवियर का मसला था। वो बिहेवियर इंसानी बिहेवियर हुआ करता था। तो जो मैं कह रहा हूँ कि ये जो अंधेरा आता चला जा रहा है, इस अंधेरे की वजह ये है शाकिर और लोग भी कि हम अपने रूहानी एक्जिस्टेंस को खो चुके हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सख्ती से कहा सूरह हशर की आयत सोचता हूँ, तो उसी आयत में तो इल्लामा इक़बाल ने कहा था कि मुझे खुदी का कॉन्सेप्ट वहीं से मिला है। अपना अपना तारुफ़ वहीं से मिला है
कि अल्लाह वो क्या चीज़ हो सकती थी कि अल्लाह ताला ने कहा तुम अगर मुझको भूल जाओगे, तो मैं तुमको भूल जाऊँगा, ये नहीं कहा। तुमको तुमसे भुला दूँगा। तुम भूल जाओगे तुम कौन, तुमको भुला दूँगा। और ये कुछ हुआ है कि हम भूल चुके हैं हम कौन हैं। हमको हर वो चीज़ की ज़रूरत है जो एक हैवान के अंदर है। लेकिन क्या हम हैवान से मुख्तलिफ नहीं थे? क्या एक भूखा हैवान जानवर 2 भूखे जानवर होते हैं ना? एक ताकतवर भूखा जानवर है, एक कमज़ोर है वो लेकिन वो भूखा जानवर है ना? सामने खाना पड़ा होता है। जानवरों में से कौन जानवर उस खाने को खाना खाएगा? ज़ाहिर-सी बात है ताकतवर वाला खाना खाएगा। ताकतवर भी है, भूखा भी है। दूसरा कमज़ोर है, भूखा है, खाना पड़ा हुआ है, ताकतवर वाला खाना खाएगा। लेकिन इंसान क्या करे खाना पड़ा रहे, एक एक ताकतवर इंसान है और एक कमज़ोर इंसान है। दोनों ही भूखे हैं, लेकिन सामने खाना पड़ा रहेगा, क्या होगा? ताकतवर वाला कमज़ोर कहेगा नहीं तुम खा लो, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। मैं ठीक हूँ, तुम खा लो। ये फ़र्क किस चीज़ का फ़र्क है ये? ये फ़र्क उसकी रूहानियत का फ़र्क है। ये इसके इंसान होने का फ़र्क है। ये ख़त्म हो रहा है। तो मैं इस पे इसलिए उठा रहा था, गुफ्तगू इसलिए उठाई थी, शॉर्ट गुफ्तगू रखूँगा, लंबी प्रोग्राम नहीं है, मैं शॉर्ट गुफ्तगू इसलिए उठाया इस बातों को कि जनाब अली प्लीज़ तुमने जो बात कही ना शाकिर बहुत सुलाने बात की, जज़ाकल्लाह खैर। ये अल्लाह की तरफ से होता है कि एक तो ये चीज़ें निकल आती हैं। हम वाक़ई नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में रह रहे हैं। आज का इंसान इसको समझने को, तसव्वुर करने को तैयार नहीं है कि एक तो ये कि वो अंधेरे में रह रहा है और मज़ीद अंधेरा आएगा उसके ऊपर। लेकिन वो अंधेरे को इसलिए नहीं पहचान रहा है कि वो अपने ज़ात के, अपने अंदर के जो रूहानी एक्जिस्टेंस होता है, जो रूहानी वजूद होता है, उसको उसका कोई इदराक नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि वो जो अंधेरे की बात है, एक तो इसका एहसास। वो एहसास एहसास ना होने की वजह क्या है? उसके एहसास ना होने की वजह ये है कि हमें हमें ये इदराक ख़त्म हो गया हमारे अंदर से कि हमारा असली वजूद, हमारी रूहानी वजूद है, जो अल्लाह ने हमको दिया है और वो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर अल्लाह ताला ने अगर फ़र्ज़ करो एक कतरा ही दिया अपने अपने रूह में से ना, तो वो कतरा भी एक जो है वो लामतनाही होता है। वो हमारा एक लामतनाही वजूद बन जाएगा। जो वो कतरा है, जो हमारे अंदर मौजूद है। मतलब है कि वो बहुत बड़ा उसका कोई एंड नहीं है, मिसाल नहीं है। तो उस चीज़ का एहसास नहीं है क्योंकि उसकी वज़ह से क्या होता कि हमारे अंदर वही ख़ुसूसियात, हमारे अंदर वही सिफ़ात पैदा होते जो अल्लाह की सिफ़ात हैं। वो हमारे अंदर से मुनक्किस होते। वो हमारे अंदर से मुनक्किस होते, हमारे अंदर से वो निकलते कि अल्लाह की रूह, अल्लाह के ख़ासा में से कुछ चीज़ हमारे अंदर है। तो इसका एहसास ना होना, इसने हमें गिरा दिया है। नंबर 1 बात, इसने हमें मार दिया है, इसने हमें इंसान से आदमी बना दिया, एक। दूसरा ये कि अल्लाह ताला का उनका दिया हुआ मकाम, इसका कोई इदराक, कोई एहसास, कोई गुफ्तगू नहीं हुआ। आज इसकी वजह से इंसान अपने मकाम से गिर चुका है, खत्म हो चुका है, अपने मकाम को नहीं पहचानता। पता है वो क्या चीज़ है? वो अल्लाह ने कहा मैंने तुमको अपना खलीफा बनाया। तुमको मैंने अपना खलीफा बनाया है। तुमको मैंने अपना वाइसरॉय बनाया है, तुमको मैंने अपना खलीफा बनाया है। ये इदराक इंसान में नहीं रहा। ना पढ़ाया गया, ना कभी कहा गया। जिस ज़माने में हमारे अंदर खिलाफत हुआ करती थी, उस ज़माने के अंदर इंसान के शुरू के अंदर ये चीज़ मौजूद था। क्योंकि वो जो हुक्मरानी हुआ करती थी, चूँकि उसके अंदर ये लफ्ज़ पाया जाता था, लफ्ज़ खिलाफत मौजूद था हमारे डिक्शनरी के अंदर, लफ्ज़ खिलाफत हमारे इस्तेमाल में हुआ करता था, अल्फ़ाज़ में हुआ करता था, तो लोग उसको शऊरी तौर पर समझते थे उस बात को और जानते थे उस बात को। ये वो चीज़ है, ये सबसे बड़ी भयानक इतनी बड़ी भयानक दुश्मनी हुई है इंसान के साथ कि आप सोच नहीं सकते कि आज यही चीज़ अल्लाह ताला ने तुमको बना के भेजा था ज़मीन के ऊपर अपना अपना खलीफा। तुम थे ही खलीफा, तुम आते ही खलीफा, तुम रहते ही खलीफा, तुम बोलते खलीफा, तुम उठते खलीफा, तुम सोते खलीफा, कैसे से तुम खाते खलीफा कैसे से। तुम थे ही खलीफा कि अल्लाह का नुमाइंदा, अल्लाह का वाइसरेगेंट इस ज़मीन पे तुम ही थे। और हमने क्या किया? ये हमारी डिक्शनरी में से, हमारी लैंग्वेज में से, हमारे यूसेज में से, हमारे कॉन्शियस में से, हमारी बातों में से, हमारी सोच में से गायब है। तुम यही तो बनाए गए थे। तुम और क्या बनाए गए थे? किस दुनिया में भेजे गए हो तुम? किसने लाए उस दुनिया के अंदर? खलीफा ही कैसे से? इंसान की 2 हैसियत से अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है। एक अब्द की हैसियत से कि अल्लाह ताला के अब्द हो, अल्लाह से ताल्लुक हो, अल्लाह से उसका रिश्ता हो। ये अल्लाह बंदे के दरमियान है रिश्ता अब्द का। और दूसरी बात अल्लाह ताला ने उसका खलीफा बनाया, जो उसका और अल्लाह के मखलूक के साथ रिश्ता है। एक इंसान 2 रिश्तों के साथ है उसका। एक अल्लाह और बंदे का रिश्ता अब्द के साथ
اور اللہ کے मखलूक के साथ उसका रिश्ता खलीफे वाला है और अब्द और खलीफा दोनों एक लाइन में पैरेलल हैं। एक कॉइन के दोनों हिस्से हैं। तुम्हें कभी शऊर में बताया गया कि तुम खलीफा थे और खलीफा उठते, खलीफा पैदा होते और खलीफा बनते और खलीफा रहते? अल्लाह के खलीफा की तरह इज़राइल अल्लाह के नुमाइंदे की तरह रहते? ये चीज़ इंसान से छीन ली गई और ये सबसे बड़ी दुश्मनी की है इब्लीस ने। इब्लीस ने जो हरकत की है मुसलमान इंसानों के साथ आप सोच नहीं सकते। उसने सबसे बड़ा काम ये किया क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको खलीफा बनाया था और यही कुड़न थी उसको इब्लीस को, तो इसने कहा बच्चों तुम लोग रुक जाओ, तुम्हारे ज़हन से, तुम्हारे शऊर से मैं इस बात को निकाल दूँगा कि तुम अल्लाह के नुमाइंदे और अल्लाह के खलीफा हो। तो मैं ये बात को निकाल दूँगा तुम्हारे शऊर से। और यही कुछ हुआ है। यही कुछ हुआ है। ये है रोना, ये है वो बर्बादी और ये है वो तकलीफ जो तुम लोग पूछते हो ना कि क्या चीज़ हुआ इंसानियत के साथ, तो ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ इंसानियत को। कि उसको भुला दिया गया कि वो अल्लाह का नुमाइंदा था, उसको भुला दिया गया कि वो अल्लाह ताला का खलीफा था। ये सबसे बड़ा नुकसान और ये सबसे बड़ी जो है ना कामयाबी हुई है इसको क्या कहते हैं इब्लीस को। आज ना हमारे पढ़ाई में, ना हमारे किताबों में, ना हमारे किसी जगह भी इस बात को ना उठाया गया, ना बताया गया कि तुम क्या चीज़ हो। और जब तुम खलीफा होते तो मैंने एक प्रोग्राम एक अब तुमको एक लिस्ट दिखाऊँगा मैंने बनाया था एक डायग्राम। उस डायग्राम में बताते किस जगह अल्लाह की कौन-सी सिफ़ात काम आती है। कौन-सी मार्फत काम आती है, सिफ़ात नहीं, किस जगह कौन-सी मार्फत काम आती है अल्लाह की ना। तो अल्लाह की मार्फत जो है, अल्लाह की मार्फत, उसकी ज़ात की मार्फत, उसकी हकूक़ की मार्फत और उसकी सिफ़ात की मार्फत। मैं कभी किसी दिन इंशाअल्लाह ताला उसको डायग्राम दिखाऊँगा तुम लोगों को। अब के तौर पे जो अल्लाह के साथ जो मार्फत चाहिए होती है एक अब्द के लिए, वो अल्लाह की हकूक़ की मार्फत, उसकी ज़ात की मार्फत होती है। लेकिन जब अल्लाह के मख़लूक़ के साथ एज़ ए ख़लीफ़ा के तुम एक्ट करते हो, तो तुम्हें अल्लाह की सिफ़ात की मार्फत होनी चाहिए। अल्लाह की सिफ़ात की मार्फत होती है इंसान के अंदर जब वो अल्लाह के ख़लीफ़े के तौर पर एक्ट करता है। असल चीज़ जो है ना वो और इसीलिए हमें वो मार्फत भी नहीं है अल्लाह ताला की। और जब ये मार्फत हमारे अंदर होती है, हमारी अल्लाह की सिफ़ात की जो मार्फत होती है हमारे अंदर, वही चीज़ हमारे हमारे अल्लाह के नुमाइंदे होने की हैसियत से वो सिफ़ात हमारे अंदर लाज़मी हमारे अंदर मुनक्किस होता है। सोच सकते हो कि हम क्या चीज़ थे? हम किस किस्म के इंसान किसको कहते हैं? कभी तसव्वुर कर सकते हो कि वो क्या चीज़ होगा, वो क्या मुक़ाम होगा? ज़रा आँख बंद के तसव्वुर तो करो कि अल्लाह का नुमाइंदा हो, अल्लाह की नुमाइंदगी पूरा करने के लिए, इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उसके खलीफा हो, उसके नुमाइंदा हो, इस नुमाइंदे को पूरा करने के लिए तुमको क्या हाई क्लास का ऑफिसर होना चाहिए। एक हाईएस्ट लेवल का ऑफिसर होना चाहिए, एक हाईएस्ट लेवल का नुमाइंदा होना चाहिए और हाईएस्ट लेवल तुम्हारा क्या होता? वो हाईएस्ट लेवल तुम्हारा होता अल्लाह की सिफ़ात की मार्फत। अल्लाह की सिफ़ात की मार्फत जो है ना, वही मैनिफेस्ट करती, वही तुम्हारे से मुनक्किस होती। ये चीज़ थी। है इंसान पहुँचा उस जगह पे? गया इंसान उस जगह पे? टच किया इंसान ने उस चीज़ों को? ये उसकी और यही चीज़, यही जो खलीफा वाली चीज़ है ना, यही चीज़ जब ये तुम करते हो, तो ये तुमको स्पिरिचुअल एक्जिस्टेंस के भी प्रोटेक्ट करता है। कितना खूबसूरत था इंसान, कितना खूबसूरत बनाया अल्लाह ताला ने इंसान को। अल्लाह ताला ने इतनी इतनी मोहब्बत की इंसान से आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। इस इंसान को अल्लाह ताला ने एंजेल के ऊपर भी फ़ौक़ियत दी। उन फरिश्तों के ऊपर भी फ़ौक़ियत दी, सारे मख़लूक़ पे फ़ौक़ियत दी। इतनी मोहब्बत की अल्लाह ताला ने, उसको वो मक़ाम दिया, इज़्ज़त दिया, अपनी में से उसने उस अल्लाह ताला ने उसको दिया और आज हम उस इंसान ने जो है ना, वही कुछ किया जो शैतान ने कहा था कि मैं आपको साबित करूँगा कि ये नाशुक्रा है। माय गॉड! उसने साबित कर दिया कि ये नाशुक्रा है और ये नाशुक्र हैं। आगे हम चलते हैं यार, हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि आगे आगे हम क्या कर सकते हैं? और आगे हम कैसे चल सकते हैं? हमको अब क्या करना होगा? ठीक है ना? नंबर 1 बात, मैंने कुछ चीज़ें सोची हैं इसके ऊपर। नंबर 1 बात ये कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, आप ना वक़्त लगाएँ, ये लाज़मी है। अगर आप ये नहीं करोगे तो फिर ज़बानी बेख़र्च है। कुछ न कुछ वक़्त अपना निकालो, फ़ारिग़ फ़ारिग़ वक़्त निकालो। और उस फ़ारिग़ वक़्त में ना, जो बातें मैंने अभी कही हैं, अल्लाह के खलीफ़ा होने की ना और जो बातें मैंने कही हैं रूहानियत की ना, कि उसके वो हमारे अंदर कैसा होना क्या होना चाहिए, उसके पे ज़रा गौर व फ़िक्र करो। ठीक है? ये मैं एक किस्म का होमवर्क है, एक होमवर्क दे रहा हूँ। इसको लाज़मी करो। खाली वक़्त में मैं बताता हूँ, खाली वक़्त में इसके ऊपर सोचो और इस पर गहरी सोचो तुम। ठीक है? क्योंकि क्यों कह रहा हूँ इसका? वही वजह बताता हूँ। क्योंकि असल जब ये अंधेरा आ रहा है ना, इस अंधेरे से लड़ने के लिए तुमको एक नूर चाहिए। और वो नूर तुम्हारे अंदर था लेकिन वो नूर के ऊपर बहुत किस्म के क्लाउड, बहुत किस्म के वो पड़े हुए हैं। अब वो नूर तुम्हारा रास्ता दिखाने के लायक नहीं है।
ठीक है ना? वो नूर रास्ते के लायक नहीं, क्योंकि वो नूर जो है ना, वो टिमटिमाती हुई रोशनी हमारे अंदर पड़ी हुई है। हालात ने उसके ऊपर एक ज़ंग आलूद वो डाल दिया है, कवर डाल दिया है उसके ऊपर। और सूरह नूर में है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि मैंने उसके ऊपर क्या है, सुना कितना खूबसूरत उसमें कि अल्लाह ताला ने कहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिशकातिन फीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजा अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहु कौकबुन दुर्रिय्युन यूक़दु मिन शजरा। कहते हैं कि हमने उसको एक ऐसे शीशे से घेर दिया है जो ब्राइट स्टार की तरह चमकता है। लेकिन हमारे गिर्द जो शीशा जो है, उसके गिर्द जो शीशा घिरा हुआ है, इट्स नॉट अ ब्राइट स्टार, वो ज़ंग लगा हुआ है, रोशनी नहीं आ रही है। तो मैं फिर आपको बता रहा हूँ, इसके आप अगर मुझ पे अगर सुनते हैं और आप करना चाहते हैं, तो मैं आपको कुछ एडवाइस कर रहा हूँ। पहली एडवाइस, और मैं इसको लॉजिकल बता रहा हूँ आपको। नंबर 1, अंधेरा बहुत है और बहुत अंधेरा आएगा। इस अंधेरे का मुकाबला करने के लिए आपके पास बाहर से कोई रोशनी नहीं आएगी, ये रोशनी आपके अंदर की रोशनी होगी। पॉइंट नंबर 1 याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 2, उस रोशनी को आप पहचानिए और उसको जला बख्शिए और उसकी रोशनी को तेज कीजिए। उसको वो तेल मज़ीद फ़राहम कीजिए जिससे कि वो और भड़क उठे। वो कैसे हो सकता है? उसको करने का तरीका यह है कि आप वक़्त निकालें, तन्हा बैठें, अकेले बैठें और अल्लाह के इस दिए हुए चीज़ों के ऊपर, अल्लाह के सिफ़ात पे, अल्लाह की चीज़ों के ऊपर गौर व फ़िक्र करें। अल्लाह से बात करें, अल्लाह से गुफ्तगू करें, अल्लाह को अपना प्रोग्राम बताएँ, अल्लाह को अपनी सब चीज़ बताएँ, सारी मुश्किल बातें, सब चीज़। अपने अंदर अल्लाह से बात करने की आदत डालिए, अल्लाह से बात कीजिए, ठीक है ना? अल्लाह को भी कहिए और उसके बाद आप अपने दिल से बात ही कीजिए, जिसको मैं कहता हूँ सेल्फ रिफ्लेक्टिव कॉन्शसनेस। उससे बात कीजिए तन्हाई में, उससे पूछिए आप तन्हाई में कि मैं जो इतने करता हूँ, वो करता हूँ, मैं कैसे वो करूँ, कैसे अपना को वो करूँ? ये आदत डालिए और अल्लाह ताला का जो अपने अंदर नूर है, उसके ऊपर आँख बंद करके फ़ोकस कीजिए कि जो चीज़ अल्लाह ताला ने मुझको दी है, तो मुझे लाज़मी तौर पर बहुत अच्छा होना पड़ेगा। जिसे कहते हैं ना, बहुत से लोग माँ-बाप कहा करते थे अपने बच्चे को कि तुम एक अच्छे खानदान के हो, तुमको ऐसा हरकत ज़ेब नहीं देता। और अक्सर बेशतर हम लोग याद रखते थे इस बात को कि हम अच्छे खानदान के, हम अच्छे खानदान कोई हरकत करते थे, हमको लगता है कि अच्छे खानदान के थे, तो लोग हमको कहेंगे कि ये इतने बड़े खानदान को होके ऐसी हरकत करता है, बड़े खानदान को होके ऐसी हरकत करता है ना। तो ये हमेशा बाज़ दफ़ा ना खानदान के रेफ़रेंस दे करके बच्चों को रोका जाता था। अपने आप को ये रेफ़रेंस दीजिए कि मैं तो वो हूँ कि मेरे अंदर अल्लाह ताला ने ये चीज़ डाली हुई है। मेरे अंदर अल्लाह ताला ने ये चीज़ डाली हुई है। कोई चीज़ शेयर की आखिर क्यों दी है अल्लाह ताला ने हमें? तो हम तो कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं कर, इस पे ज़रा गौर व फ़िक्र कीजिएगा। ज़रूर इसको आप करते जाइए। आपको आपको छोड़ दिए कि अभी कुछ गौर व फ़िक्र का कोई रास्ता ही नहीं मिला, नहीं, आप खाली बैठ के 2 लफ्ज़ बात कीजिए उससे। ये डेवलप होता है, ये डेवलप होगा। आप मत सोचिए कि कोई आदमी किताब लिख कर के आपको दे दे और किताब आप पढ़िएगा तो उससे आप डेवलप हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। You start from 0, it's not 0, you start from any number, but you have to sit down, you have to talk, उससे बात करिए, आप गौर कीजिए, अपना वक़्त लगाइए कि ये दिया है तो मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह की चीज़ मेरे अंदर मौजूद है, तो मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे कुछ और होना चाहिए, ठीक है ना? तो इसकी इसकी हिफ़ाज़त करें। एक बहुत खूबसूरत शेर था अल्लामा इक़बाल के मफ़हूर का, बहुत खूबसूरत शेर था इसके बारे में, ठीक है ना? कि तेरी दी हुई इस चीज़ की मैं हिफ़ाज़त नहीं कर सकता। ठीक है? तो इस चीज़ की हिफ़ाज़त कीजिए। 2 बातें हो गई। क्या होती है? एक तो इस चीज़ की हिफ़ाज़त कीजिए, मैं कह रहा हूँ आपसे, इस पे गौर-व-फ़िक्र कीजिए और दूसरी मैंने कहा कि अल्लाह ताला से बातें कीजिए। ठीक है? ये दोनों चीज़ें आपको ना तन्हाई में करनी है। शुरू-शुरू में तन्हाई में करनी है, बाद में ये आपकी आदत बन जाएगी। ये चीज़ें आपको वापस जो है ना, आपकी स्पिरिचुअल एक्जिस्टेंस को वापस लेके आएगी। खत्म तो नहीं हुई ना, जैसे हम लोग कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर है, वो वापस आएगी, उसको तवानाई मिलेगी, उसको सेहत मिलेगी, उसको तंदुरुस्ती मिलेगी। ये काम आप करेंगे तो आपके स्पिरिचुअल एक्जिस्टेंस को सेहत और तंदुरुस्ती मिलेगी। आपने उस एक्जिस्टेंस को मज़ीद मज़बूत करना है, तंदुरुस्त करना है। जब उसकी तंदुरुस्ती आ जाएगी ना, ये फिर आपको बहुत क़ुव्वत और बहुत ताकत देगी। ये आपके अंदर वो रोशनी को डेवलप कर देगी, ये रोशनी भड़कने लगेगी, ये रोशनी आपकी रहनुमाई करेगी उस अंधेरे के अंदर। जो आने वाले अंधेरे के अंदर, मैं फिर बता रहा हूँ, इसके लिए इस रोशनी की ज़रूरत है और इसकी ये रोशनी जो है ना, आपको पता है कब भड़कती है और नूरुल अला नूर बनती है? फिर ये रोशनी जब अंदर आपके बनने लगेगी ना, जैसे कि उसमें क्या लिखा हुआ है कि ये भड़कने को तैयार है, तो ये रोशनी आपकी ना भड़कने को तैयार होगी। ऐसा हो जाएगा जब आप ये फ़ोकस करेंगे, क्योंकि ये पोटेंशियल है इंसान का ना,
एक पोटेंशियल लाइट है इंसान के अंदर, तो ये बिल्कुल तैयार होके भड़कने के लिए ना, इसको आप भड़काएँ, बिल्कुल तैयार होके। अब इसको भड़कने के लिए होगा कि जब ये ऐसा हो जाएगा ना, तो फिर आपको कुरान का मज़ा आएगा, फिर कुरान आपके साथ होगा, कुरान आपको टच करेगा और जब कुरान आपको टच करेगा, तो अंदर का नूर, जो ये पोटेंशियल नूर है और कुरान जो बाहर का नूर है, जब ये 2 नूरून आपस में मिलेंगे ना, तो ये नूरुल अला नूर हो जाएगा, लाइट अपॉन लाइट हो जाएगा, फिर सारी चीज़ें आपको वाज़िया हो जाएँगी। और उस वही चीज़ आपको इस अंधेरे से बचा सकेगी और कुछ नहीं बचा सकेगी। वही चीज़ ले जाएगी और ये याद रखिएगा कि इस नूर में फिर आप अकेले नहीं होंगे। ये नूर और आप जैसे और लोग नूर और दूसरे लोग, ये सारे नूर जमा होंगे और ये सारे नूर फैल जाएँगे। फिर वही होगा जो अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं अपने नूर को मुकम्मल करके रहूँगा। फिर मैं वही होगा कि मैं अपने अपने नूर को मुकम्मल के कराऊँगा। फिर आपका नूर, मेरा नूर, ये सब नूर आपस में सम अप होंगे। ये सारे नूर सब ऐड अप होंगे और फिर अल्लाह ताला इसी नूर को जला देंगे। यही नूर से बढ़ेंगे और यही नूर आगे बढ़ेगा और यही नूर अंधेरे का मुकाबला करेगा और फिर यही नूर अल्लाह का नूर हो जाएगा, जिससे सारे जहाँ रोशन हो जाएगा। और अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं अपने नूर को मुकम्मल करूँगा। इसका हिस्सा बनिए। इसका हिस्सा बनिए, पशमुर्दा मत रहिए, ना ही मायूस मत रहिए, अल्लाह के नूर का हिस्सा बनिए, जो नूर अल्लाह ने कहा है कि मैं मुकम्मल करके रहूँगा, ठीक है? चाहे काफ़िरों को मुश्किल हो कितना लगे, उसका हिस्सा बनिए। मैं ये प्रोग्राम करना चाहता था आप लोगों के साथ।